Good morning, students. In the previous videos, we have completed the topic. Now we are starting the new topic, that is saprotrophs. Now, students, you have seen this saprotrophs, but you don't know which are saprotrophs. Okay. आपने देखा होगा ब्रेड के ऊपर some patches, okay, during the rainy season, like brown, green, okay, this type of patches, white grayish color also, this type of patches. Actually, these are the organisms called saprotrophs. Now, what is sapro? Okay, sapro means, students, rotten. Okay, rotten, and trophs means nutrition. जहाँ पे न्यूट्रिशन रोटन थिंग से obtained करते हम. See, the organisms, see from where the rotten things, dead or decaying things, okay, that is used for obtaining nutrition. So what is the definition of this saprotrophs? Saprotroph are organisms that obtained nutrition. Saprotrophs are organisms. Saprotrophs are the organisms which obtained nutrients from dead and decaying matter. अंडरस्टूड. सो जहाँ पे डेड और डिकेइंग मैटर से अपना फूड ऑब्टेंड करते हैं, उन ऑर्गेनिजम्स को क्या बोलते हैं हम? सैप्रोट्रॉफ्स. सो एक एग्जांपल लेते हैं सैप्रोट्रॉफ का, जैसे फंजाई. ओके स्टूडेंट्स, फंजाई क्या है? एक टाइप का सैप्रोट्रॉफ है, बिकॉज इट ऑब्टेन्ड इट्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग मैटर. ओके. और वन मोर एग्जांपल इफ यू विल टेक, दैट इज मशरूम. Okay, mushroom, it is used like in the vegetable market also. It is used like a vegetable. Most of the peoples, they are eating, they means उनको बहुत पसंद है ये खाना मशरूम खाना, like a vegetable. Other vegetables you are making, same it is the process. Now it is fluffy like umbrella like patches. ये क्या है? फ्लपी. जैसे अगर आपको इसको मैं नॉर्मल लैंग्वेज में कहूँ तो इसको इस तरीके से, जैसे सांप की छतरी भी कह देते हैं कई इसमें लैंग्वेजेस में. तो स्टूडेंट्स, जहाँ पे भी हम अपने घर का हाउस होल्ड वेस्ट वगैरह डालते हैं, ऑर्गेनिक मैटर, वहाँ पे आपको ये दिखाई देगा. ये देखिए, फ्लपी सी अम्ब्रेला लाइक पैचेस आपको दिखाई देगा रेनी सीजन में ग्रो करता हुआ रोटिंग वुड के ऊपर. ओके. सो what type of nutrients they need, let's we will understood how they will obtain their nutrients. वो अपना nutrients how, what is the process, their procedure, and the process of us obtaining nutrient from the food is same or it is different. Let we will check. And you will also able to see the fungus, students. How you will see the fungus? One activity I will tell you. Suppose this is a container. Okay. Now इस कंटेनर में यू विल कीप ए पीस ऑफ ब्रेड. वट यू विल कीप देयर? ब्रेड. यहाँ पे आपने एक ब्रेड का पीस रख दिया. ओके. ना उसके ऊपर आप स्प्रिंकल सम वाटर ड्रॉपलेट्स. स्प्रिंकल 5 to 10 वाटर ड्रॉपलेट्स. उसके ऊपर 5 to 10 वाटर ड्रॉपलेट्स आप स्प्रिंकल करोगे, छिड़कोगे. देन इस कंटेनर को क्या कर देना? टाइट कंटेनर को क्लोज करके एंड कीप इट फॉर 3 to 4 days. Now you will see this type of patches like greenish color or grayish, white also. जैसे कॉटन का नहीं होता फ्लपी सा, उस तरीके से आपको ब्रेड के ऊपर नज़र आएंगे. ना यू अंडरस्टूड. सो सैप्रोट्रॉफ्स का एग्जांपल लें तो मशरूम एंड फंगस. ओके. ना यू विल सी स्टूडेंट्स, this fungus are not they are not able to, they do not have chlorophyll. Okay. So they do not do photosynthesis, process is not possible. Photosynthesis process will not take place in fungus. Why? Because of absence of chlorophyll. क्या इसमें प्रेजेंट नहीं होता स्टूडेंट्स? इसके अंदर ये अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते फंगस. वाई? Because photosynthesis process will not take place in the fungus. Now why photosynthesis process not take place? Because in fungus chlorophyll is not present. Understood? So that's why it is not possible. Now this fungus, in some places the fungus is useful also, like in that we will discuss here,
in this topic when I will tell you. Now, but in some places it is harmful also, like when it grow on the any other organisms, then it spoil the food also. It spoil the food. Now during wet season, when the season is wet, it we will find in the environment. ये हमें कहाँ दिखाई देगा? environment के अंदर spores के form में, छोटे छोटे pores. But when they will get the you will see, when they will get the wet and wet मतलब गीला सा and humidity, rainy season, ह्यूमिडिटी जहाँ पे होगी, देन दे विल ग्रो बेटर ऑन दैट प्लेसेस. दे आर प्रेजेंट वेयर दे आर प्रेजेंट इन द एयर, बट when the conditions are according to them, according to the fungus, then only they will grow. Like they require humidity, means in the rainy season they grow well, and the wet region high humidity, okay, that place. Now you'll see, and how it's look like, cotton like threads. When you will see on the bread pieces now, cotton like threads you will see on the pieces of the bread, okay. This you will see in this figure also, okay. So what is your observation? If anyone ask, when you sprinkle water on this 5-10 droplets on this bread pieces and keep it in the moist places 2 to 3 days, okay, yeah, 3-4 days, then what is your observation? Cotton like thread you will see on the that bread pieces, and the color is also different type of fungus are there, and the color also you will see the light green color also, and the other colors also. Color you will see here, you will see that the green, white, green, brown, or any other color also you will see these patches which you will see on the bread, okay. You will see only with the help of microscope or a magnifying glass. How will you see this fungus? With the help of magnifying glass or a microscope. So you will see next this one, most of them, these organisms, this cotton you will see on the thread, cotton like threads spread on the piece of the bread, these are called fungi. What we call this one? These are called fungi, okay. Now they have different mode of nutrition. The mode of nutrition is different. We will see what is the mode of nutrition. Like this is the bread, student. Now on this bread you will see the different patches, cotton like threads. These are called fungi. Now how they will? First they will secrete the digestive juices. What they will secrete? This fungi secrete digestive juices. Digestive juices secreted here. Who will secrete? फंगस. फंगस क्या करेगा यहाँ पे? डाइजेस्टिव जूसेस अपनी बॉडी के अंदर से बाहर इस ब्रेड के ऊपर डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रेट करेंगे स्टूडेंट्स. अब क्या करेंगे? ये डिकेइंग मैटर जो है ये क्या होगा? ब्रेक डाउन दिस डिकेइंग मैटर, ओके. दिस डिकेइंग मैटर क्या करेगा? ब्रेक इनटू simpler substance, and this simpler substance they are converted. Now this digestive juices break down organic matter into the simpler substances and convert into a, और फिर उसको किस में simpler substance के बाद उसको किस में convert कर देते हैं? They are converted into a solution. फिर जो डेड और डिकेइंग मैटर को जो ब्रेक करेंगे, फर्स्ट क्या किया इन्होंने? फंजाई, व्हाट दे विल डू? द फंजाई रिलीज डाइजेस्टिव जूसेस ऑन द ब्रेड. दिस इज द डिकेइंग मैटर. नाउ दिस डाइजेस्टिव जूसेस ब्रेक दिस ऑर्गेनिक मैटर. इस ऑर्गेनिक मैटर को सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक करेंगे एंड देन इनटू द सिंपलर सब्सटेंस इनटू द सॉल्यूशन फॉर्म में ले आएंगे. अंडरस्टूड? नाउ दिस व्हाट दे विल डू? Now they absorb what this one happen now into simpler solution. Now this mode of nutrition, now they will absorb nutrients from it.
अब वो क्या करेंगे, सॉल्यूशन के फॉर्म में आने के बाद देन दे विल एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट फ्रॉम इट. So this is the way. See students, we take inside in our body the complex food. कॉम्प्लेक्स फूड हम लेते हैं हमारी बॉडी के अंदर. देन इनसाइड इन आवर बॉडी डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज. हमारी बॉडी में क्या होगा, डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज होंगे. और ये डाइजेस्टिव जूसेस जब रिलीज होंगे देन दिस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इज ब्रेकन इनटू सिंपलर फॉर्म. बट क्या बताया मैंने, हमारी बॉडी के अंदर डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज होते हैं और कॉम्प्लेक्स फूड हमारी बॉडी के अंदर ही सिंपलर फॉर्म में, सॉल्युबल फॉर्म में आ जाता है. बट फंजाई क्या है, आउटसाइड द बॉडी, बॉडी के बाहर, आउटसाइड द बॉडी, बॉडी से बाहर कहाँ रिलीज करिए डाइजेस्टिव जूसेस, ऑन द डेड एंड डिकेइंग मैटर पे. नाउ दिस डेड एंड डिकेइंग मैटर विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस, दिस डाइजेस्टिव जूसेस, ये डाइजेस्टिव जूस क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे इसको, डेड एंड डिकेइंग मैटर को इनटू द सिंपलर एंड देन द आफ्टर सिंपलर देन सॉल्युबल फॉर्म में. एंड सॉल्युबल से दे टेक द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम इट. सो इस टाइप की न्यूट्रिशन जहाँ पे, सो दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन स्टूडेंट, सो दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच, सो देन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिजम्स क्या टेक करते हैं, न्यूट्रिएंट्स इन द सॉल्यूशन फॉर्म. सो जहाँ पर अगर ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन कर रहे हैं किस फॉर्म में, सॉल्यूशन फॉर्म में. कहाँ से, डेड एंड डिकेइंग मैटर से, डेड एंड डिकेइंग मैटर से. सो दैट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. सो व्हाट आई विल टेलिंग यू, अगर I will tell you the definition of saprotroph. Saprotroph are the organisms which obtain its nutrients from dead and decaying matter. So dead and decaying matter से जो organisms food obtain करते हैं उनको बोलते हैं saprotroph. And saprotrophic nutrition कौन सी होगी, जहाँ पे nutrients solution की form में convert हो जाते हैं. किनको करते हैं solution की form में, dead and decaying matter को. तो उस टाइप की न्यूट्रिशन को बोलते हैं स्टूडेंट्स saprotrophic nutrition. Now you will see fungi also grow on pickles also, leather also, clothes also. So during weather this moisture and humidity they will are harmful for us because they grow on pickles. pickles को भी ख़राब कर देते हैं. leather, हमारे अगर कोई भी leather की चीज़ है, ठीक है, ओके, then they will, वो उसको भी क्या कर देते हैं, leather की अगर कोई चीज़ होगी तो उसको भी स्टूडेंट्स वो ख़राब कर देते हैं. अंडरस्टूड. देन व्हाट वी हैव टू डू, हमें क्या करना चाहिए, जो हाई टेम्परेचर हो इन सभी चीज़ों का क्या करना चाहिए, लाइक पिकल्स है, वी हैव टू ऐड मोर ऑयल्स एंड कंटिन्यूसली मिक्स द दिस पिकल्स कंटिन्यूसली डेली. ओके, उसको 3-4 टाइम्स हिला के रख लेना चाहिए. लेदर ऑल्सो इन अ सेफ प्लेस पे रखना चाहिए, सो दैट देर शुड नॉट बी एनी वेट कॉर्नर, कोई भी वेट कॉर्नर नहीं होना चाहिए. ओके, सो देयर दिस फंजाई विल नॉट बी एबल टू ग्रो मोर. ओके, नाउ यू विल सी दिस fungi, how this some fungi are harmful. You told that some fungi are useful. Now this fungi useful, that I will tell you, and the harmful fungi. Some of the fungi are found, they create disease in the plants also. Many the disease you will see, this is because of the fungi. Okay, now you will see one example of the disease fungi. Now you will see because of the fungi there is a disease in the wheat plant that is called rust of wheat. What is the name of the disease, student? Because of the fungi cause disease in the wheat plant. What is उस disease को हम क्या बोलते हैं, rust of wheat. यहाँ पे जो wheat जो गेहूँ होती है ना बेटा, वहाँ पे वो यहाँ पे ऐसे इसका कलर इसमें चेंज हो जाता है स्लाइटली, ब्लैक सी कहीं कहीं पे ब्लैक का इसमें स्टार्ट हो जाते हैं यहाँ ब्लैक कलर सा. ओके, दैट इज़ कॉल्ड रस्ट ऑफ व्हीट. दिस इज़ द डिजीज बिकॉज ऑफ द फंजाई. ओके,
सो फंजाई वाई इट इज़ सीन मोस्टली स्प्रेड इन द वेट एंड रेनी सीजन, क्यों स्प्रेड होती है? बिकॉज फंजाई स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर, एंड जनरली कहाँ प्रेजेंट होते हैं? एयर में होते हैं. एंड व्हेन दे विल in the rainy season, what will happen? They get the proper atmosphere. They mostly spread on this time, so they get the proper atmosphere. Now what is this fungi will do? Wet and warm things जहाँ पे भी मिलेगी, they germinate and grow. Okay, so they will grow in that places. Now some organisms live together. See students, all the organisms are not able to make their food own self. So what they will do? They live in the relationship, means getting benefit from each other. They will get benefit from each other. So that type of relationship is called, what we call that type of relationship? Symbiotic relationship. What we call this one? Symbiotic relationship. Understood? Now you will see some of the symbiotic relationship. I will tell you, when both the organisms getting benefit from each other. लाइक अगर मैं एक एग्जांपल दूँ, पीछे हमने पैरासाइट का देखा था, वहाँ पे क्या था? पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में बोथ आर नॉट गेटिंग बेनिफिट फ्रॉम ईच अदर. दोनों को एक दूसरे से बेनिफिट नहीं हो रहा था, ओनली होस्ट को नुकसान हो रहा था, पैरासाइट को उसके यूज़ हो रहा था. पेस्ट को फ़ायदा हो रहा था, पैरासाइट को, बट होस्ट को तो नुकसान हो रहा था, वो उससे अपने न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन करती. बट इन सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बोथ द ऑर्गेनिजम्स लिव्स टुगेदर इन ए simple relationship and both are getting benefit from each other. Now like you will see some trees. पीछे हमने पढ़ा था ना, how the fungus are useful for us. Now you will see this fungus का यूज़ यहाँ पे देखो. ट्री प्रोवाइड क्या करती है स्टूडेंट्स? न्यूट्रिएंट टू द फंगस. और फंगस हमें कहाँ मिलती है? ये फंगस जो है ना, अगर आप रूट पेड़ ट्रीज़ की अगर रूट्स में देखोगे ना, तो वहाँ पे सर्टेन रूट्स में, कुछ रूट्स में क्या है? फंजाई वहाँ पे रहती है. नाउ ट्री क्या है? फंजाई को क्या, जो रूट के अंदर क्या है? फंजाई है. तो ट्री प्रोवाइड कर रहा है न्यूट्रिएंट्स टू दिस रूट के अंदर जो फंजाई है. रूट के अंदर क्या है स्टूडेंट्स? रूट के अंदर फंजाई है. ओके, कई जड़ों के अंदर फंजाई मिलती है. ओके, सम प्लांट्स. एंड अब ये फंजाई क्या करेगी? प्लांट्स इसको न्यूट्रिएंट्स देगा, बट फंजाई उसको क्या देगी? इन रिटर्न टू दैट it will absorb water and nutrients from the soil. So plant को water and nutrients मिल गया, और फंजाई को फंजाई ने दे दिया. और फंजाई क्या, दिस ट्री क्या करेगा? क्लोरोफिल इज प्रेजेंट एंड फोटोसिंथेसिस ऑल्सो, सॉरी, सनलाइट इज ऑल्सो देयर. सनलाइट भी है और क्लोरोफिल प्लांट ट्री के अंदर है. देन दे मेक द फूड एंड दिस फूड इज प्रोवाइडेड टू द फंजाई. Okay, so this way they will live in the get benefit from each other. Now you will see one more fungi and alga relationship. Some this type of organisms are called lichens. क्या कहते हैं organisms को हम? lichen. एक lichen क्या स्टूडेंट? lichen is a type of plant. lichen क्या एक type of plant है, जो किस टाइप का प्लांट है? जिसमें कोई भी रूट, स्टेम, लीव्स ऐसा कुछ नहीं होता. इट बिलोंग टू ए किंगडम थैलोफाइटा. आप जाके ये 9th क्लास में पढ़ोगे, ये थैलोफाइटा किंगडम से बिलोंग करता है. हमने प्लांट कैटेगरी को भी अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है. थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा. यू विल लर्न ऑल दिस वन इन हायर क्लास. सो ये लाइकन किस किंगडम, प्लांट किंगडम को, किंगडम के डिवीज़न को बिलोंग करता है? थैलोफाइटा. PHYTA. ओके, नाउ यू विल सी दिस लाइकन क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर होता है. इसमें क्या है? एल्गी एंड फंजाई बोथ लिव टुगेदर. नाउ व्हाट दे विल डू? बोथ एल्गी एंड फंजाई लिव टुगेदर, एंड व्हाट दे विल डू स्टूडेंट्स? दिस एल्गी प्रोवाइड फंगस. एल्गी क्या प्रोवाइड कर रही? सॉरी, एल्गी प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स एंड फंगस प्रोवाइड शेल्टर वाटर. एल्गी प्रोवाइड क्या कर रही है? न्यूट्रिएंट्स, फूड प्रोवाइड कर रही है टू द फंगस. एंड फंगस क्या प्रोवाइड कर रहा है प्लांट को? प्रोवाइड शेल्टर ऑल्सो, वाटर ऑल्सो एंड मिनरल ऑल्सो. नाउ बिकॉज दिस एल्गी इज ग्रीन इन कलर. ओके, एल्गी इज ग्रीन इन कलर एंड दिस दे हैव क्लोरोफिल. नाउ अगर उनमें क्लोरोफिल है स्टूडेंट्स,
so they will do photosynthesis. If photosynthesis will take place, तो वहाँ पे क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट बनेगा. अंडरस्टूड. अगर कार्बोहाइड्रेट बनेगा तो फूड प्रिपेयर हो गया. फूड किसको मिल जाएगा, फंगस को. एंड फंगस क्या प्रोवाइड कर देगी, शेल्टर ऑल्सो, वाटर ऑल्सो एंड मिनरल्स ऑल्सो. So it is absorbed by the plants. So this way they will get benefit from each other. Now you understood, students. Now तो कुछ एग्जांपल्स हमने देखे फंजाई के अगर आप टाइप्स देखोगे, मैनी फंजाई लाइक ईस्ट, मशरूम आर यूजफुल. So mushroom is useful because we get many nutrients from it. Yeast is also a good type. You see yeast student, yeast is also a type of fungi. So many fungi like mushroom and yeast. अब yeast भी हमारे लिए यूज़फुल है. How it is useful? Because अगर हमें कई बार क्या होता है, सपोज हमें फर्मेंटेशन प्रोसेस, जैसे ग्रेप्स है, ओके, ग्रेप्स को हम फर्मेंटेशन करके हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं, अल्कोहल में. सो अल्कोहल बनाने के लिए ग्रेप्स का जब फर्मेंटेशन होता है तो उसमें हम क्या ऐड करते हैं, ईस्ट पाउडर. ओके स्टूडेंट्स, उसमें क्या ऐड करते हैं, ईस्ट पाउडर. वन मोर एग्जांपल आई विल टेल यू. ईस्ट पाउडर का जो ये ईस्ट पाउडर है, इट इज़ यूज्ड आल्सो इन मेकिंग ब्रेड बनाने में एंड केक बनाने में भी. जब ईस्ट, सपोज दिस इज़ ए बिकर, इस बिकर के अंदर हमने क्या डाल दिया, आटा, दैट इज़ कॉल्ड फ्लोर. आटा डाला इसमें, फिर उसमें हमने ईस्ट पाउडर डाल दिया. क्या डाला स्टूडेंट, हमने ईस्ट पाउडर. एंड शुगर ऑल्सो, 1 or 2 teaspoon शुगर, हाफ स्पून ईस्ट पाउडर एंड फ्लोर, एंड देन वार्म वाटर. फिर वार्म वाटर से ये आटे को क्या कर लेते हैं हम, अच्छी तरीके से इसको डो में कन्वर्ट कर देते हैं. डो जिसको बोलते हैं आटा गूंदना. ओके, आफ्टर सम टाइम यू विल सी, इसका जो लेवल आटे का गूंदने के बाद अगर इतना लेवल था, आफ्टर 5-6 hours यू विल सी द लेवल विल बी राइज अप टू दिस मच. क्यों इसका लेवल इतना क्यों हो जाएगा, बिकॉज दिस ईस्ट ब्रेक डाउन शुगर. इस शुगर को ब्रेक डाउन करेंगे, देन क्या प्रोड्यूस होगी, कार्बन डाइऑक्साइड. व्हाट इट विल प्रोड्यूस, कार्बन डाइऑक्साइड. और जब कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड के जब बबल्स इस आटे के अंदर, डो के अंदर प्रोड्यूस होंगे तो उसका लेवल क्या हो जाएगा, राइज होगा. किसका, डो का, आटे का राइज होगा, और ये धीरे धीरे फ्लफी बनता जाएगा. अंडरस्टूड. सो ईस्ट इज़ यूज्ड इन here also, making bread also, making alcohol also, making cakes also, pastries also. So this one. And some are harmful, this fungi that I will told you, that rust of wheat is a type of plant disease. Rust of wheat जो हमने भी पढ़ा था स्टूडेंट्स, rust of wheat is a type of wheat, it is a type of plant disease. और ये plant disease, so it means some fungus cause disease in plants also. Okay, and some in human beings also. So some fungus are useful, that we are used for making our food also, in food material also we are using, and some are harmful also. Okay students, keep on my watching videos. If you feel any problem anywhere in any concept, then you can ask also, free to ask. I don't have any problem, but keep watching. Okay, thank you.